A very good morning, class. Today we are going to discuss the basic accounting lecture. And first of all, we are going to discuss the meaning of accounts. As we all know, whenever a business start a business, जब कभी भी कोई व्यक्ति एक व्यापार को स्टार्ट करता है, there are many kind of transaction take place in business. There are sales and purchase, there are income and expenses. So for maintaining these kind of expenses, we require an accountant. Because end of the day, we should know what exactly our profit, what exactly our loss. So first of all, we are going to discuss the meaning of accounts. As we know, the accounts is an art. जब कभी भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वी हैव टू टैकल मेनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, इट इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. तो पहला स्टेप ही है कि हम ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं. After recording, we are going to classify each and every transactions. Why classifications? Because there are many kinds of transactions, such as the credit transactions, such as cash transaction, as well as when we are making sales, there are credit sales as well as cash sales. So that is basically a part of classification. Now, when we talk about summarizations, it is the most important part in accounts, because if you are not going to summarize the transactions, we don't know what kind of transaction is it. यहां में से ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो समराइज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो ट्रांजेक्शन उधार है या नकद है. सो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट मैनर, देयर आर अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी हैव टू फॉलो. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी हैव स्टार्टेड और कमेंस अ बिजनेस ऑन 1st April, तो एवरी ट्रांजेक्शंस वी हैव टू record in the books on date wise. So that is basically called significant. And in terms of money, means whatever the transactions are in the business, this is basically in terms of money. So we have to transactions record in terms of money, means whether we are making sales, whether we are doing expenses, that is basically in terms of money. Then transactions and event. Transaction means many more transactions take place, because end of the month we have numerous kind of transactions: sale, purchase, income, expenses, and we have received the income also. We have to make the payments, which are in part at least of financial character. तो ऐसे transactions which can be measured in monetary terms, जिनको हम मुद्रा में मापते हैं, मनी में मापते हैं, ऐसे ही transactions को हम accounts में record करते हैं. And later on, whatever the result, we have to communicate to the management that whenever a businessman is doing business, he must know end of the day what exactly the profit, what exactly the loss. As income are more than expenses, then we arrive profit. If income are less than expenses, we arrive profit. And in simple word, as a layman, we can say that accounting is an art of recording. First of all, what we have to do, we have to record. After recording, what we have to do, we have to classify कि either it is a part of sales, either it is a part of expenses. Then summarizing means we have to explain in a narrations. Means whenever we are doing entry, we have to summarize either it is from the party, either it is on the basis of cash. And those transactions which can be expressed in financial terms has been recorded. And accounting is basically a base through which a businessman take the decisions. Mean whatever business he is doing, either is in a profitable situation, either in a loss situations. So that is basically the meaning of accounting. Now, bookkeeping. See, bookkeeping is basically a art of recording in a book. Bookkeeping में as a layman हम क्या करते हैं, केवल हम बुक्स को मेंटेन करने का काम करते हैं. The work of bookkeeping can be done by a clerical staff. तो एक bookkeeping का जो work है, that has been done by the clerical staff. We did not hire the expert. As when we are going to start the business, the first and primary thing is called bookkeeping. Whatever the transaction taking place, because when we are going to start the business, the first transaction is called a capital invested by proprietors. Then purchase, then sales. So whatever the transactions that receipt has to be maintained, there is a part of bookkeeping. That's why bookkeeping is basically a simple art of
recording the monetary aspects. And in bookkeeping, first of all, what we have to do, we have to identify the transactions, means the transactions which are in terms of money, that should be identified. The second, we are going to measure, means measuring means we are going to monitor that transaction, either it is a part of cash basis or a credit basis. Then recording of identified transactions, each and every transactions we have to identify. For example, अगर हमारे द्वारा परचेज की गई है, then we have to maintain a purchase file. When we have making a sales, we have to maintain a sales file. When we have the expenses related anything, we have to maintain the expenses file. So filizations part is basically called the bookkeeping. That's why bookkeeping is a primary and accounting is secondary. Now, when we talk about the different aspect of bookkeeping and accounting, the first and foremost difference between bookkeeping and accounting is called bookkeeping is a primary, accounting is secondary. Bookkeeping is done by the clerical staffs. We did not require any analytical kind of persons. We did not require the higher qualified personnel in case of bookkeeping. But when it comes to accounting, we must require a highly qualified personnel for maintaining or for the analyzing and the finalizations of accounts. Now we talk about procedure of accounting. See, whatever we are doing, suppose when we are taking the admission, there are certain kind of procedures. So in accounting, we also have a procedure. Procedure means a step by step of doing the things. Now, when we talk about procedure, the first is called identifications. हमें अंकेक्षण करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है. Then after identifying the transactions, we are going to measure whether this transaction is related to monetary terms or not. If the transaction is not related to monetary terms, we are not going to record. Then third is called recording. Recording means we have a book that is called journal. Accounts में एक book है जिसको हम बोलते हैं journal, जिसको बोलते हैं रोजना मंचे. It means whatever the daily transactions we have to record in the journal books, and that books is basically maintained on the date wise. जो book maintain की जाती है, that has to be maintained date wise. Then classifications. Now the classification is basically a part of ledgerizations. Means every part of expenses has been keep aside the expenses ledger book. When we talk about the purchase related things, we have a purchase book. When we talk about the sales related, sales means when we are selling anything, it can be a product, it can be a services, so that is basically a sales books. Now there are certain times happen that there are certain product which are damaged, so either it is a purchase return, we are maintaining a purchase book. तो purchase return के लिए हम purchase book maintain करते हैं, and sales return we are maintaining the sales return. That is basically called a classification part. Then it's called summarizations. We are writing a narrations, means suppose for example we have bought a goods from Shyam. हमारे द्वारा श्याम से कोई गुड्स खरीदा गया. Now who is the श्याम? श्याम एक व्यक्ति है जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं. And in accounting we have the two things, remember, that is basically called double entry system. The one person is debited and another will be credited. For example, purchase is basically a expense. Purchase है क्या? खर्चा. खर्चा हमेशा डेबिट होता है. तो जो परचेज है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, that has to be recorded in purchase. Either it is a cash, either it is a credit. We have to mention and that these are the cash purchase and these are the credit purchase. That is basically a part of summary. Now analyzing. Now end of the day we have to analyze that total sales means how much cash sales and how much credit sales, means how much amount we have received from the party and how much is still pending from the party. That is basically called analyzing part, whether the income are more, whether the expenses are more. तो सिर्फ अगर हम इसको जनरल वे में बात करेंगे कि जो भी हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, क्या हमें उससे ज्यादा आया है या हमें उससे कम आया, क्या हमारे खर्चे ज्यादा है या हमारी आय ज्यादा है. दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एनालाइजिंग. लास्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेटिंग. नाउ वी हैव टू इंटरप्रिटेट ईच एंड एवरी transactions, means there are certain transactions which we cannot recover from the debtors, means कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हम डेप्टर से रिकवर नहीं कर पाते,
उनको हम इंटरप्रिटेट करने का काम करते हैं, व्हाई वी हैव नॉट येट रिकवर्ड. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशंस. एंड लास्ट, वट एवर द रिजल्ट, either it is a part of profit, either it is a part of loss, we have to communicate at the top level management, because accounting informations play a very dominant role on the part of consumer as well as supplier, investors, bankers, or the top level management. So that is basically a part of communication, as communications is an essential process, because communication is the process of passing information from one person to another. Means in the same way, when we talk about accounting information should be passed to the director as well as the managing director, so that they comes to know that where we are lacking. Now, using the financial information, now who is the users? The first is called investors. Investor को बोलते हैं हम जो व्यक्ति पैसा लगाता है बिजनेस में. इट कैन बी एनीथिंग. शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टर हो सकता है, डिबेंचर होल्डर भी इन्वेस्टर्स हो सकता है. तो फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है कि वो पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है. बिकॉज इफ द पर्सन आर इन्वेस्टिंग इन द मनी, ही शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का पास्ट 10 ईयर्स का, पास्ट 5 ईयर्स का क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एंड हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे आर गोइंग टू बी कीप असाइड एट अ पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. कितना प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी रिटेन अर्निंग के रूप में मेंटेन कर रही है और कितना प्रॉफिट का हिस्सा एज अ डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड के रूप में. सो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करेगा व्हेन ही इज गोइंग टू बी गेट अ रिटर्न प्रॉफिट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इट सेज दैट व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग मोर, इट मींस द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग प्रॉफिट. जब आपके द्वारा निवेश किया जाता है और निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो निवेश के लिए भी बोला जाता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स द रिस्क आर मोर, एंड इफ द रिस्क आर मोर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हाई. देन एम्प्लॉय. नाउ हु इज द एम्प्लॉय? द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर अ कंपनी एंड द पर्सन हु एग्री टू रेंडर देयर सर्विसेज, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अ पर्सन इज गोइंग टू गेट अ रेम्युनरेशन. ऐसा व्यक्ति जो हर महीने अपने सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, और उस बिहाफ में कंपनी से क्या पे कर रही है, मंथली बेसिस पे सैलरी पे कर रही है. एंड एज वी नो दैट द एम्प्लॉय आर द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अ कंपनी कैन हैव अ सेम लेवल ऑफ फाइनेंस, बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैन पावर, देन यू कैन विन द मार्केट. यू कैन मेंटेन योर बुक्स इन ए प्रॉपर वे, so that you can identify that where we are lacking. And for the employee, because if our employee is ready to join any organizations, first of all he go through the companies, the last performance, the current performance, what exactly the turnover of company, how many employees are working in the organizations. तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन एक कर्मचारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, either it is a profitable organization या लॉस मेकिंग. Then third is called lender. Now who is the lender? Lender are the person who basically lend money to the company. And when we talk about lender, the lender basically include the bank or the financial institutions. Because as we know, whenever a businessman start the business, there are two options of starting a business. Either he invests his own capital, either he borrow from the financial institutions. So when he is investing from his own capital, so it means that the risks are more. Why we prefer owner's capital? Because if a firm do not have enough amount of cash flow, then they should rely on owner's fund, neither the borrowed fund. अगर एक कंपनी का कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा है तो कंपनी को रिलाय करना चाहिए बोरोड फंड में. अगर कैश इनफ्लो कम है, then he should rely the owner's equity. Then second is called supplier and credit. Now who is a supplier? Supplier एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. एंड नाउ हु इज द क्रेडिटर? हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कैश एज वेल एज अ क्रेडिटर. सप्लायर भी तभी गुड्स रॉ मटेरियल देगा जब कंपनी की वास्तविक या फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग होगी. तो एक सप्लायर के लिए भी
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस कंपनी को वो रॉ मटेरियल दे रहा है, इज इट वर्थ मेकिंग फॉर्म्स और नॉट. अगर वो लॉस मेकिंग है, देन ही incurred a loss. And same sense, a creditor, when we talk about, if we are purchasing from the creditor and we are not going to make the payment, now the creditor stop giving the goods. अगर हमारे द्वारा लेनदार को भुगतान नहीं किया गया तो फर्म कभी भी हमें उधार में माल नहीं देगी. तो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लायर और क्रेडिटर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी के साथ वो डील कर रही है क्या वो प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी है या नहीं. नेक्स्ट आता है कस्टमर्स. नाउ हु इज द कस्टमर्स? सी, कस्टमर कैन बी एनीथिंग, एनीवन. समटाइम इट हैपन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड अ कस्टमर्स. सपोज इफ आई एम गोइंग टू बी बाय समथिंग, आई एम द कस्टमर एंड आई एम आफ्टर दैट आई एम सेलिंग दैट गुड्स, so it is a part of customers. So when we talk about a consumer is a different aspect. According to economics point of view, that the consumer are the one who basically consume goods and services. He is the final one who consume goods and services. Now in terms of customers, that is a different aspect. Customer can be anything. The person who indulge and who deals with the company will be treated as a part of customer, and customer expecting that the company will regularly gives the payments or gives the qualitative products, because customer expecting that he will get the warranty as well as the guarantee. That's why for the point of the accounting information, customers के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. Next, government in the agency. As we all are aware, whenever we are buying a goods or we are selling a goods, we have to pay the tax. Earlier we are paying the VAT, that is called value added tax. Now we are paying GST. If when we are purchasing a goods and we are making the tax, that is basically called input tax. Now when we are selling a goods, we are collecting a tax, that is basically called output, and the difference we have to pay. So accounting information are also essential for the government. On that basis, the government know that how much tax a company has been filed. So it act as a evidence for the company. तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट है, वो एक बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो गवर्नमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि many times happen that कि टैक्स की चोरी होती है. There are 4 kinds of concept: tax planning, tax avoidance, tax evasion. So with the help of that accounts annual report, a government find out that how much tax has been paid by the proprietors. Now last, that is called public. Now public means a general public. He also interested to know that the company who are giving the services, who are selling the product and services, either they are in profitable situation or not. तो एक पब्लिक के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है. क्यों महत्वपूर्ण होती है? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि पब्लिक भी ये जानती है कि अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कहीं ना कहीं वो CSRP भी करेगी. दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको बोलते हैं एक नैतिक जिम्मेदारी. और नैतिक जिम्मेदारी करने के लिए भी एक फर्म के पास इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का होना जरूरी है. अगर एक फर्म बहुत ज्यादा CSRP करती है तो even for an individual or a group of people know that. We can take the example of Ajim Premji Foundations. We take the example of Tata, as Tata having the Tata Memorial Hospital in Mumbai. So they basically conduct regular types of social responsibility for the public. So this is basically a procedure of accounting in which we have discussed the generating financial information, and this is basically the users who use the accounting information for the purpose. Next, we talk about importance of accounting. क्यों अकाउंटिंग जरूरी है, क्या महत्व होता है अकाउंटिंग करने का? पहली चीज कि जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, वी गॉट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. हमें नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से हमें वित्तीय लेन देनों का पता चलता है. अब वित्तीय लेन देन होते क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं. एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए ये बहुत ही कठिन है कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज कर पाए. इसीलिए जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो पहले के सिस्टम में
हमारे इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम में जो जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, वो भी अपने यहाँ पे खाता बही यूज करते थे। उस खाता बही में दो चीजें होती थी, एक होती थी नाम, एक होती थी जमा। नाम आपका डेबिट बना और जमा आपका क्रेडिट बना। और इस स्थिति को खोजने के लिए जब हम किसी की बात करते हैं तो ल्यूकास पेसिलियो ने डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कवर किया, जिन्होंने कहा कि जब कभी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो एक खाते प्रभावित नहीं होते, बहुत सारे खाते प्रभावित हैं, दो पार्टीज, आइदर अ डेबिट और आइदर अ क्रेडिट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के बेसिस पे हम नियमित रूप से व्यवस्थित ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा रख सकते हैं। टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशंस की तरह काम करती है। एज आई हैव डिस्कस्ड दैट इन्वेस्टर वांट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉफिट व्हेन ही इज गोइंग टू गेट द रिटर्न्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, दो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट व्हेन दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी दे विल गेट अ रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो दैट इज बेसिकली टू सर्व एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये सूचना देने का भी काम करती है, जिन व्यक्ति के द्वारा पैसा लगाया जा गया है, जिन व्यक्ति के द्वारा बिजनेस से डील की जा रही है। तीसरी चीज आती है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये बताने का भी काम करती है कि आप किस तरीके के डिसीजंस लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को इनकर्ड होता है लॉस, तो कंपनी क्या करती है, कहीं ना कहीं कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम करना शुरू कर देती है, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज द फाइनेंस इज टू गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम कॉस्ट। तो इंपोर्टेंस अकाउंटिंग की ये भी है कि अकाउंटिंग के बेसिस पे जितने भी वित्तीय लेन देन है उनके हम डिसीजन ले सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ और लॉस को बोलते हैं हम हानि। जब कभी भी व्यवसाय के द्वारा, व्यापारी के द्वारा कोई व्यवसाय किया जाता है, उसका ये मानना ही है कि हो सकता है कि आज मुझे प्रॉफिट हो सकता है कल मुझे प्रॉफिट हो, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, अदर व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोप्राइटरशिप, when we talk about partnership, when we talk about companies, all the business, those who are doing the business, what their aim to know profit or loss. Now, how we are going to arrive the profit? Profit कैसे आता है? अगर हमारी इनकम, हमारी जो आय है वो हमारे खर्चों से ज्यादा आती है तो वो हमारे लिए क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से बहुत ज्यादा है तो वो कौन सी सिचुएशन है, हानि। तो एक लेमैन के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाया और मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हो गया और उस 8 लाख में से मैंने 1 लाख एक्सपेंसेस दे दिया, तो 2 लाख मेरा क्या बचा, नेट प्रॉफिट बचा। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये भी बताने का काम करती है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली। एज अर्लियर द अकाउंटिंग हैज बीन डन ऑन द एनुअल बेसिस, बट टुडे एरा every business came to know that what exactly the weekly profit, what exactly the monthly profit, what exactly the quarterly profit. Then last, information regarding financial position. Financial position को बोलते हैं हम वित्तीय स्थिति। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए लेमैन की बात करें, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, अगर उसके पास BMW है तो हमें समझते हैं यार इसकी वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी होगी, बिकॉज उसका स्टेटस, उसका पहनावा, उसका ट्रेंड्स ये बताता है कि वो वास्तविक उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसे ही एक कंपनी की वास्तविक स्थिति को कैसे पता किया जाएगा? हाउ मच ही हैव असेट्स, हाउ मच नंबर ऑफ ब्रांचेस ही हैविंग, हाउ मच सेल्स टर्नओवर, हाउ मच प्रॉफिट रिकवरेबल। सो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मींस हाउ मच असेट्स वी हैव एंड हाउ मच लायबिलिटी वी हैव। अगर एक फर्म के पास बहुत ज्यादा असेट्स होती है लायबिलिटीज के कंपेयर में, then we can say that the financial positions are strong. Then enable comparative strategy means तुलनात्मक अध्ययन। जब हम comparative strategy की बात करते हैं तो हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, बिकॉज every year we are preparing our annual reports. Now what is annual reports? It is basically include profit and loss और बैलेंस शीट। तो हर साल कंपनी के द्वारा अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है। इन फाइनेंशियल रिपोर्ट दे बेसिकली चेक दैट लास्ट ईयर व्हाट वी हैव द सेल्स, कि पिछले साल हमारी सेल कितनी थी,
इस साल हमारी सेल्स कितनी है, पिछले साल हमने कितना कैश रिकवर किया, इस साल कितना किया, पिछले साल हमारी एसेट्स कितनी थी, इस साल हमारी एसेट्स कितनी है, पिछले साल हमारी लायबिलिटी कितनी थी, इस साल हमारी लायबिलिटी कितनी है। तो एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, एंड इन दैट वी बेसिकली प्रिपेयर फॉर द प्लानिंग एज वेल एज help in decision making. Now what is decision making? Decision making is the process of taking the decisions, whether we have to continue the business, whether we have to shut down. For example, अगर एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की 4 यूनिट है and 3 unit are giving more profit and the 1 unit are not giving more profit, then he have the options, either continue or either shut down. So that is basically a part of decision making. Now it help in budget preparation. Now what is budget? Budget is basically a rough statement. budget होता क्या है, आपकी फैमिली में भी आप लोग बजट बनाते हैं, आपकी मदर बजट बनाती है ना, आपके फादर के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसमें आपकी मम्मी ये देखती है कि कितने खर्चे होंगे और कितनी इनकम होगी। तो बजट एक क्या है, एक रफ एस्टिमेशन होता है कि हर मंथली हमारे पास कितनी इनकम आएगी और कितना हमारा खर्चा होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे ही ये पॉसिबल है, क्योंकि जब एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करती है या अकाउंटेंट एक अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो उसको ये पता होता है कि इस मंथ उसके पास कितना रेवेन्यू आएगा, इस मंथ कितने खर्चे आएंगे। सो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ बजट प्रिपरेशन। नाउ वी टॉक अबाउट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स। जब कभी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात होती है तो हमारे पास 2 यूजर होते हैं, है ना। जैसे आपने देखो, जब आप मोबाइल यूज करते हो तो आप यूज कर रहे हो या आपकी फैमिली यूज कर रही है। जब आप यूज कर रहे हो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इंटरनल यूजर, और आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं या आपका कोई मित्र यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पे भी हम ये समझेंगे कि एक्सटर्नल यूजर होता कौन है और इंटरनल यूजर कौन होता है। तो इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड के। नाउ कौन लोग होंगे इनसाइड के? सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, एम्प्लॉय, ओनर्स और स्टॉक होल्डर्स। तो इनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि ओनर के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है और एंड ऑफ द years owner expect that he will get a regular amount of profits. Same times when we talk about the shareholder are also expecting that the firm will declare the dividend. अगर फर्म के पास प्रॉपर प्रॉफिट होगा तभी फर्म क्या करेगी? डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अदरवाइज वो डिक्लेयर नहीं करेगी। दूसरा था एम्प्लॉय आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट as a firm are incurring a huge amount of profit, then it is the possibility of getting the increment. If the firms incurred a huge amount of loss, the firm will not increase the salaries. So financial informations एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी ये जानना चाहता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है what he is getting, whether he is getting increment or not. And that is called management. As I have told you that management basically include the CEO, CFO. They also want to know where the company is going. Either they become the competitive leader in the market, where they are lacking, what exactly the cash sales, why the credit sales, why the bad debts की भाई इतने bad debts क्यों हो रहे हैं, ठीक है। As now we talk about the external users. Now external users are basically called outsider. Customers. कस्टमर कहीं ना कहीं क्या है? एक आउटसाइडर है। Whenever he is purchasing you, he think that the company having name and fame. तो कस्टमर जब आपसे खरीदता है, जब आपको पे करता है, तो वो यही सोचता है कि जिस कंपनी से वो खरीद रहा है उसका मार्केट में अपना नाम है, और मार्केट में नाम है, then he will get the warranty or the guarantee, he will get the services. तो उसके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वो मार्केट में आपके प्रोडक्ट को खरीदता है तो ये देखता है कि कंपनी कब से एग्जिस्ट है, कंपनी का कितना टर्नओवर है, कंपनी की क्या सर्विसेज है, कंपनी की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कंपनी की क्या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड कस्टमर्स। एज नाउ क्रेडिटर। नाउ हु इज अ क्रेडिटर? फ्रॉम हुम वी आर गोइंग टू परचेज अ गुड्स। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। तो जिस व्यक्ति से हम गुड्स खरीद रहे हैं वो भी ये जानेगा कि भाई जिस कंपनी को मैं माल बेच रहा हूं कि भाई वेदर ही इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी। अगर प्रॉफिटेबल कंपनीज है he will continue, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है he will withdraw that.
and potential investors called stakeholders as well as shareholders. For them accounting information are very important, same as government also, same as academic and public. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक कर्मचारी है चाहे वो सरकार है। सरकार भी आपके एनुअल बेसिस पे ये चेक करने का काम करती है व्हाट एग्जैक्टली यू हैव पेड द टैक्स। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप हैं, जैसे एक पेरेंट्स के 3-4 बच्चे होते हैं, इसी तरीके से अकाउंट्स के भी 4 पार्ट है, अकाउंट्स को भी 4 पार्ट्स में विभाजित किया। हालांकि वी हैव द मैनी मोर पार्ट ऑफ अकाउंट्स बट दीज आर द स्पेसिफिक। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली accounting in which we basically record the transaction, the accounts in which we basically classify each and every business transactions. We are going to prepare and present financial statement to be used by internal external. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम लेन देन से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन से रिलेटेड चीजों को हम मेजर करने का काम करते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेजर और उनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, ताकि हमें कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लग सके और कंपनी का क्या प्रॉफिट है, कंपनी का क्या लॉस है ना। दैट इंफॉर्मेशन विल गेट थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ वी हैव मैनेजरियल अकाउंटिंग। नाउ एज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजरियल अकाउंटिंग, दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग through which we can take the decisions. तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व फाइनेंशियल एनालिसिस। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में एक मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने का काम करता है। एक सिचुएशन होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस। तो व्हाटएवर द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड आफ्टर दैट द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल टेक द डिसीजंस। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है जो ये बताएगी वेदर टू मेक वेदर टू बाय, हमें बनाना है या हमें खरीदना है, ये डिसीजन कौन लेता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे ही हम कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है ना, बजटिंग हो गई, ये सारी चीजें हमारी किसके पार्ट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is an accounting in which we are basically record or present the cost. Means suppose we are the manufacturing firm. अब मान लेते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जहां पे हम प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। तो भाई उस प्रोडक्ट की क्या लागत आई, क्योंकि whenever we are going to talk about the cost basically included the expenditure which is incurred for producing a product. तो कॉस्ट है क्या, कॉस्ट वो लागत होती है जिसको हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं। और कॉस्ट है क्या, कॉस्ट इज बेसिकली अ समिशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट की जब कभी भी बात करते हैं दैट इज बेसिकली द कॉस्ट विच इनकर्ड बाय द ओनर। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। तो कॉस्ट में हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। देयर आर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। Whenever we are producing a product, what exactly the cost? तो जो cost का part है that is done by the cost accountant. And for your knowledge, I am going to tell you the cost accounting is basically the part of ICAWA. When you are going to complete your 12th, then there's a course that is called basically ICAWA, that is called Institute of Cost and Work Accounting. And this is basically the work of cost accountant. That is called tax accounting. Tax accounting is basically purely related to the calculation of tax, which include direct tax और indirect tax. एक direct tax होता है, एक indirect tax होता है। जब हम direct tax की बात करते हैं, we talk about, हिंदी में direct tax को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो direct tax वो tax होता है जो एक व्यक्ति खुद पे करता है, means the taxes which is levied on individual income is known as direct tax. And indirect tax are those tax which is levied on buying and selling of goods. In case of income tax, we cannot transfer the burden. Income tax के केस में कहा जाता है कि हम टैक्स का बर्डन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट
In case of indirect tax, the burden has been shifted. Suppose you have purchased the goods, you have paid the GST. Now the person who have sold, he has been collected that tax. So now it is the responsibility of that person to file or to submit the tax on behalf of the consumers. So the tax accounting is purely related to tax planning, the GST, income tax, TDS. So this is basically a part of tax accounting. Now we talk about objective of accounting. कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा ध्येय है, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग। पहली चीज आती है कि अकाउंटिंग करने से हमें नियमित और व्यवस्थित रिकॉर्ड मिलता है। तो अकाउंटिंग एक नियमित व्यवस्थित रिकॉर्ड देता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, इट बेसिकली प्रोवाइड द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एंड दैट रिकॉर्ड हैज बीन फॉर द फ्यूचर्स एंड फॉर द प्रेजेंट्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा रिकॉर्ड देती है जो हमारे लिए एक एविडेंस की तरह काम होता है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, वी टॉक अबाउट बुक कीपिंग, वी टॉक अबाउट जर्नल्स। As we have discussed that bookkeeping is an art of recording the transactions, whereas journal is basically a chronological record of every transaction on the date wise। जहां पे जर्नल में क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। थर्ड इज कॉल्ड लेजर्स। दिस इज बेसिकली अ सब्सिडरीज बुक इन विच ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज बीन कैटेगराइज, जहां पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम सेल्स की बुक बनाएंगे, हम परचेस की बात कर रहे हैं हम परचेस की बुक बनाएंगे। नाउ लास्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में हम तलपट भी बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ अकाउंट्स which shows the arithmetical accuracy of accounts। तो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस हमें ये बताता है कि जो अकाउंट्स है क्या वो इक्वल है या नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जब कभी भी बात होगी हम ये जांचने का काम करते हैं, ये चेक करने का काम करते हैं कि डेबिट क्रेडिट के बराबर है या नहीं। अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं होता है देन वी फाइंड दैट देयर इज अ एरर। देन असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, हम अकाउंटिंग के बेसिस पे रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट मींस व्हेनेवर वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग और अ ट्रेडिंग अकाउंट, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट वी नो ग्रॉस प्रॉफिट और अ ग्रॉस लॉस। एक होता है सकल लाभ, एक होता है सकल हानि। तो जब हम सकल लाभ सकल हानि की बात करते हैं तो वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें हमें पता लगता है कि वेदर वी हैव मेड मोर सेल्स, वेदर वी हैव मेड मोर परचेज। द डिफरेंस इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। देन ascertainment of financial position, for getting the ascertainment of financial positions we prepare balance sheet। बैलेंस शीट को हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। इसकी दो साइड होती है, लायबिलिटी असेट्स। तो लायबिलिटी असेट से हमें ये पता लगता है कि भाई कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर आप कंपनी की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो यू हैव टू लुक द पास्ट ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। As investors, when a person is investing in company or maybe buying the shares, he just go through the earlier record or earlier financial performance of the company. And when we talk about the balance sheet basically shows either the assets are more, either the liabilities are more। तो हमारी बैलेंस शीट हमें ये बताने का काम करती है कि भाई हमारे दायित्व ज्यादा है या हमारी असेट ज्यादा है। लायबिलिटी मीन्स अ मनी ओ टू द ओनर्स। लायबिलिटी ये बताती है कि भाई हमने कितना पैसा बाहर वाले से लिया है, और असेट से हमें बताती है कि हमारे पास कितनी कुल संपत्ति है। अगर एक कंपनी की असेट्स बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी की कंपेयर, इट मीन्स दैट द कंपनी आर मोर प्रॉफिटेबल। देन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे अकाउंट्स का वो यही होता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, चाहे जर्नल है, चाहे लेजर है, चाहे ट्रायल है, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशंस है, या
बैलेंस शीट की सिचुएशंस है, वो सारी रिपोर्ट को मैनेजमेंट तक पहुंचाना। इसीलिए हर एक फर्म्स क्या करती है, अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है एंड ऑफ द ईयर्स, एंड दैट एनुअल रिपोर्ट हैज बीन साइंड बाय द CS, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी, एंड CA, that is called chartered accountant, and these has been given to the bankers also whenever the firm withdrawing the loan। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। इफ वी वांट टू एक्सपेंड अवर बिजनेस, दैट रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स। Then now we discuss classification of account, कि अकाउंट्स को भी विभाजित किया गया है। अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं इम्पर्सनल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते वो खाते होते हैं जिनका संबंध एक व्यक्ति से है। वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो व्यक्ति एक फर्म भी हो सकती है, वो व्यक्ति एक एसोसिएशन भी हो सकती है। दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल मींस प्रकृति, मींस ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के द्वारा है ना। आर्टिफिशियल मींस अ कंपनी, बिकॉज इन कंपनीज एक्ट 1956 itself says that the company is an artificial person created by law with perpetual succession having a common seal with limited liability। तो कंपनी ये कहती है कि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी को कानून के द्वारा बनाया जाता है, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लीगल, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। मींस राधे श्याम एसोसिएशंस, मींस राधे एंड श्याम, दे बोथ आर द ब्रदर्स एंड दे क्रिएट अ एसोसिएशन और दे क्रिएट अ कंपनी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पर्सनल, that is another divided into two parts, real और nominal। रियल की जब हम बात करते हैं we talk about वास्तविक खाते। नॉमिनल की जब हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं आय और व्यय वाले खाते। तो जब कभी भी हम नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल इज बेसिक एन अकाउंट विच बेसिकली इंक्लूड इनकम और एक्सपेंडिचर। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को कवर अप करने का काम करते हैं। इनकम क्या होती है, देखिए आप सैलरी ले रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। आप कमीशन ले रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। आपको डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। आपने अपना घर बेच दिया प्रॉफिट पे, है ना, खरीदा आपने, बनाया 5 का बेच दिया 10 का, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, है ना। आपका किसी ने पैसा देना था पिछले साल, इस साल दे दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। तो इनकम बेसिकली कैन बी एनीथिंग्स, बट स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ कंपनी, व्हेन द फर्म सेल गुड्स, after selling the goods whatever they receive, that is a part of income। तो real is basically divided into tangible real account और intangible। see, जब कभी भी हम tangible की बात करते हैं और intangible की बात करते हैं, तो tangible means मूर्त संपत्ति। ये वो संपत्ति होती हैं जिनको टच किया जा सकता है, और intangible real account वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं पोडियम पे खड़ा हूं, मैं पोडियम को टच कर सकता हूं, तो दैट इज पार्ट ऑफ टेंजिबल इनकम। मैं इस स्क्रीन को टच कर रहा हूं, ये भी टेंजिबल है। लैपटॉप टेंजिबल है। द थिंग्स विच कैन बी सी, विच कैन बी टच, इज अ पार्ट ऑफ टेंजिबल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंजिबल अकाउंट, आर दोज अकाउंट विच वी कैन नॉट टच। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग गुडविल, एक बिजनेसमैन है जिसकी मार्केट में अपनी गुडविल है, वी कैन नॉट टच द गुडविल, वी कैन नॉट सी द गुडविल, but we can realize it, we can felt it, that is basically a part of intangible। And nominal, which I have already discussed, nominal basically include all the income, all the expenses account। As we know, when we talk about income, salary can be income, interest can be income, profit can be income। When we talk expenses, rent, salary, wages, so it depend upon एक, इसीलिए प्रोफेसर दैट इज कॉल्ड कीन्स की थ्योरी ये कहती है कि एक व्यक्ति के लिए अगर वो इनकम है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक्सपेंस है। और उन्होंने एक ये चीज भी ऐड कही कि एक व्यक्ति की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, उसका इन्वेस्टमेंट और उसकी सेविंग भी उसी प्रारूप में बढ़ती है। नाउ वी डिस्कस गोल्डन
rules of account. Now we move golden rules of accounts. तो हमने अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ा. अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये एस्पेक्ट है कि जब कभी भी हमारे द्वारा अकाउंटिंग की जाती है तो वो कौन से ऐसे 3 रूल हैं. एज वी नो द अकाउंटिंग इज बेसिकली आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है. जब हम कभी कला की बात करते हैं तो क्यों अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है? क्योंकि एक अकाउंटिंग के द्वारा जब अपनी क्रिटिकल स्किल्स को यूज किया जाता है टू प्रेजेंट अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एन आर्ट. नाउ व्हाई अकाउंटिंग इज अ साइंस? बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन अकाउंट्स. कुछ अकाउंट्स के रूल्स भी हैं जिनको एप्लीकेबल किया जाता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स. एंड द फर्स्ट प्रोसेस इटसेल्फ इन अकाउंट्स इज कॉल्ड जर्नल. For doing the journal entries, we have 3 golden rules. 3 golden rules हमारे accounts के हैं. That is basically called personal account. As we have discussed, we have the personal account that is purely related to an individual or a representative or a company. Then we have the real accounts that is basically purely deal with assets. Assets are different types of current assets, fixed assets. Then we have nominal accounts. So nominal accounts is basically concerned with income एज वेल एज एक्सपेंसेस. तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हम आय व्यय खाते के नाम से भी जानते हैं. अब आय क्या होती है एक व्यक्ति की? मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर मेकिंग अ सेल्स, व्हाटएवर द अमाउंट यू आर गोइंग टू बी रिसीव, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यूज. तो सेल्स विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इनकम, परचेज विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट रूल वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. मैं बार बार बता रहा हूं, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका संबंध एक व्यक्ति, एक संस्था, एक फर्म से होता है. इसके लिए जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जो व्यक्ति देगा वो क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव पेड रेंट टू द लेंडर्स. हमने लेंडर्स को रेंट पे किया. लेंडर्स कैन बी एनीथिंग. सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राम और सियाराम. सियाराम को हमने 5,000 कैश पेमेंट किया. तो नाउ डेबिट द रिसीवर. तो यहां पे रिसीव कौन कर रहा है? सियाराम. तो सियाराम क्या हो जाएगा? डेबिट. और हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश. और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब कैश आएगा डेबिट होगा और जाएगा क्रेडिट होगा. तो पहला रूल यही बताता है कि व्यक्तिगत खाते में अगर किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है तब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मींस जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और अगर हमारे द्वारा कैश पेमेंट किया जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सेकेंड रूल इज कॉल्ड रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाते. इनका संबंध संपत्तियों से होता है. संपत्तियां भी अलग अलग तरीके की हैं. कुछ हमारी वास्तविक संपत्ति होती है जैसे फिक्स असेट्स. हमने कहा बिल्डिंग है, टेबल है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये फिक्स असेट्स हैं. इसमें एक रूल एप्लीकेबल होता है कि ये वो असेट्स होती हैं जिनका हम जैसे जैसे यूज करते हैं ये समय के हिसाब से इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है ना. Simple language we can say that fixed assets are those assets which will be depreciated over a period of time and that has to be decreases by every year. And what kind of rule applicable in that cases? In this case, we have the rule that what comes in will be debited. Business में जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा और बिजनेस से जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा. We can take the simple example. हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमारे द्वारा फर्नीचर किया गया, खरीदा गया, फॉर एग्जाम्पल अ फर्म बॉट अ फर्नीचर ऑफ 1 लाख. एक फर्म के द्वारा फर्नीचर खरीदा गया है. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म में फर्नीचर आया है. तो फर्नीचर आया, मैंने पहले ही बताया, जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा. तो फर्नीचर विल बी डेबिटेड और कैश विल बी क्रेडिटेड. बट अगर वी हैव फर्नीचर फ्रॉम द पार्टी, हमने कहा कि राधे श्याम से हमने फर्नीचर खरीदा, तो दैट इज डिफरेंट.
राधे श्याम से कैश में फर्नीचर खरीदा, दैट इज डिफरेंट। तो जब कभी भी हम किसी पार्टी से फर्नीचर खरीदते हैं तो वो क्या है, क्रेडिट है। लेकिन अगर हम कैश में खरीदते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर कैश में खरीदा है तो सिंपल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर किसी पार्टी के द्वारा खरीदा है तो क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी। इट कैन बी अ राधेश्याम, इट कैन बी अ सियाराम, whatever party you are purchasing. Now third rule is called nominal account rule, that is called income and expenditures. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो दो चीज मैंने आपको सिंपली बताई। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर सेलिंग अ गुड्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इफ यू आर बाइंग अ गुड्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ परचेज क्या है, एक एक्सपेंस है, और सेल्स क्या है, एक इनकम है। तो रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, लॉसेज आर डेबिटेड। जितने खर्चे होंगे, जितने एक्सपेंसेस होंगी, जितनी हानि होंगी, उनको हम डेबिट करेंगे। एंड ऑल द इनकम्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन विल बी क्रेडिटेड। जितनी हमारी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेड सैलरी, वी आर द फर्म एंड वी आर पेइंग द सैलरी, तो इन दैट केसेस व्हाट विल बी द एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड इफ वी हैव परचेज अ गुड्स, अगर फर्म के द्वारा गुड्स परचेज किया है, देन इन दैट केसेस परचेज विल बी द एक्सपेंसेस। एज आई टोल्ड यू, all the expenses, losses are debited and purchase will be treated as a part of expense. That's why purchase will be debited and cash will be credited. Same things, good sold to Mohan, either cash sales, हमने good sold किया मोहन को, या हमने cash sales किया मोहन को, तो in that cases what will be the entry? As I told you, whenever we are receiving a cash, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कैश मिलती है तो वो डेबिट होती है, और जब कभी भी जाती है तो वो क्रेडिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को पे किया है, देन इन दैट केसेस वी आर गोइंग टू क्रेडिट इट। लेकिन बट हमें रिसीव हो रही है तो उस केस में वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो इस केसेस में अगर हमने राम को गुड सोल्ड किया है कैश में, तो कैश आएगी, ठीक है, इसलिए कह भी रहा है, याला रूल भी लगा सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रही है, क्या हो जाएगी, डेबिट। और आई टोल्ड यू नॉमिनल अकाउंट, द सेल्स आर इनकम, तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाए। सो इन अ नटसेल वी कैन से दैट कि पहले के प्रचलन में भी और आज के प्रचलन में भी यही समय है कि आप कभी किसी दुकान में जाएंगे तो कभी कभी कुछ दुकानदार ये लिखते हैं कि भाई आप उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। तो जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, दैट इज बेसिकली कंसेप्ट केम फ्रॉम द अर्लियर ऑल्सो। जब एक ऐसा समय होता था कि हम जब कभी खरीदते थे तो हम एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करते थे। आप सभी को याद भी होगा कि जब किसी दुकान से हम क्रेडिट में खरीदते थे तो वो क्या करता था, वो एक अपने आप एक डायरी मेंटेन करता था, जिसमें वो क्या करता था, हमारे नाम लिख देता था। तो जो डेबिट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नाम, क्रेडिट इज द कंसेप्ट ऑफ जमा। तो अगर हमने किसी दुकान से उधार खरीदा है और उधार हमने 5,000 का खरीदा है महीने में, तो वो क्या करता है, हमारे नाम लिख देता है कि भाई रमेश भाई, सुरेश भाई ने इतने महीने का राशन खरीदा। लेकिन जब हम उसे पेमेंट कर देते हैं तो क्या लिख देता है, जमा। तो अकाउंटिंग इज बेसिकली सच काइंड ऑफ कंसेप्ट which is very very important for day to day life. As a student you are doing the accounting, as a manager you are doing the accounting, at the Hindu undivided family you are doing the accounting. Accounting is a pervasive functions which is a continuous process whenever the business will be. Thank you class.